ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم جیسی لڑکی کو سیدھا کرنا میں اچھے سے جانتا ہوں، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ مہروز غصے سے غرایا۔ وہ آرمی آفیسر تھا، بہت سخت مزاج تھا۔ اس کی ماں اس کا نکاح کرنے اسے گاؤں لائی تھی۔ اس نے لڑکی کو اب تک نہیں دیکھا تھا، پر گاؤں میں ایک کم عمر شرارتی لڑکی نے اس پر پانی کا غبارہ پھینکا، پر مہروز کے غصے سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ رات مہروز کی ماں نے اسے بتایا لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے اس لڑکی کے کمرے میں گیا، پر بیڈ پر سوتی اسی شرارتی لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پر اب نظر اس معصوم چہرے پر اٹک گئی تھی۔ وہ مسکراتا یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کے شانوں کے گرد لپٹی شال کو اپنے گرد مزید اچھے سے لپیٹا اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو رگڑ کر مسلا تھا۔ وہ کافی دیر سے اپنے گھر کے لان میں بیٹھا اپنی زندگی کا حساب کتاب کر رہا تھا، مگر اب تک نفی کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس کی پیشانی کے بلوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے جو کچھ بھی چاہا تھا وہ پا لیا تھا، مگر جانے کیوں آج بھی اس کی زندگی میں ایک عجب سی بے کلی تھی۔ اسے کسی بھی پل چین نہیں ملتا تھا۔ وہ اماں کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ سب کچھ اس کی پہنچ سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور سونے کے لیے اپنے کمرے کے جانب بڑھا۔ حالانکہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر وہ سونا چاہتا تھا۔ وہ حقیقت سے فرار ہونا چاہتا تھا، اور اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ ورنہ اگر وہ ماضی کی سوچوں کے سائے تلے ساری رات یہاں بیٹھتا تو اسے پوری رات گزرنے پر ایک لمحے کا ہی گمان ہوتا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور شال اپنے شانوں سے ہٹا کر صوفے پر اچھال دی۔ کمرے میں آتے ہی اسے عجیب سے گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے حتی الامکان دور بھاگتا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا وہ جب بھی اپنے گھر آئے اسے اپنے کمرے میں نہ آنا پڑے، مگر جب وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک جاتا تو اپنے کمرے میں آ جاتا، مگر یہاں آ کر وہ مزید بے سکون ہو جاتا۔ اسے لگتا وہ کسی کی یادوں کے احساس تلے جکڑا ہوا تھا۔ مہروز آفندی زمین پر پاؤں لٹکائے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کے پیر اب تک اس کے جوتوں میں مقید تھے۔ اس نے انہیں آزاد کرنے کی ہوش تک نہیں کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اگر بھیانک یادوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ابھی یہ کمرہ چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائے گا، مگر ہر بار وہ ڈٹ جاتا تھا۔ ساری رات خود سے لڑتے گزار دیتا۔ مہروز آفندی آج 2 سال بعد اپنے گھر واپس آیا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس نے پلٹ کر اپنے گھر کی خیر خبر تک نہیں لی تھی۔ وہ اپنی ماں سے روز فون پر بات کر لیا کرتا، مگر ان سے ملنے ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ مگر آج وہ اپنی ماں کے بے حد مجبور کرنے پر یہاں آیا تھا، اور اب خود سے جنگ لڑنے میں مصروف تھا۔ کافی دیر تک تو وہ اپنی ماں کے ساتھ لاؤنج میں ہی ان کی گود میں سر رکھے لیٹا رہا، مگر جب اس کی ماں تھک گئی اور سونے چلی گئی تو وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر لان میں آ گیا۔ جب وہاں بھی بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو اپنے کمرے میں آ گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اپنے کمرے میں آ کر اسے بے چینی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ کافی دیر رک کر وہ بے سدھ لیٹا خالی خالی آنکھوں سے چھت کو تکتا رہا۔ اماں تو اسے یہاں بلا کر مطمئن ہو گئی تھی۔ ان کے جگر کا ٹکڑا 2 سال بعد آخرکار ان سے ملنے آ گیا تھا۔ وہ بالکل مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی، مگر مہروز جانتا تھا کہ یہ 2 سال انہوں نے اس کے بغیر کیسے گزارے ہوں گے، مگر وہ بھی مجبور تھا۔ وہ جب بھی گھر جانے کے بارے میں سوچتا، ایک عجیب سی وحشت اسے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیتی، اور وہ مجبور ہو کر اپنے قدم وہیں روک لیتا۔ کل رات جب اماں کا فون آیا تھا تو وہ تڑپ گیا تھا۔ اسے اماں کی آواز بے انتہا لاغر محسوس ہوئی تھی۔ میرے بچے، بس ایک بار گھر آ کر اپنی شکل دکھا دو۔
क्या माँ के जनाजे पर आने का इरादा है? अम्मा ने भीगी हुई आवाज में कहा। तो महरोज तो तड़प ही गया। उसने बहुत मुश्किलों से खुद को घर पर जाने के लिए राजी किया और सुबह ही रखते सफर बांध लिया और शाम तक वो अपने घर के बाहर मौजूद था। उसने अम्मा को अपने आने के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो दबे पांव घर में दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर दंग रह गया। अम्मा उसके इंतजार में पहले ही तैयार खड़ी थी। तरह तरह के पकवान बनाए थे, जैसे उन्हें यकीन था कि इस बार तो वो लाजमी आ ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ। महरोज आफंदी सुर्ख पड़ती नजरों के साथ उनके सामने मौजूद था। उन्होंने बेख्तियार अपने जिगर गोशे को अपने सीने से लगाया। काफी देर तक वो खामोशी से रोती रही थी। साथ ही साथ इंतहाई मजबूत नजर आने वाले महरोज आफंदी की आंखें भी भीग चुकी थीं, मगर वो खुद को कमजोर जाहिर नहीं करना चाहता था। इसलिए आंसुओं को उसने अपने अंदर उंडेला और अब वो तन्हा बैठा अपनी माजी की परछाइयों में गुम हो गया। दिल के दर्द उसके चेहरे से अया हो रहे थे। जब्त के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो माजी की भूल भलैयों में भटका हुआ 3 साल पहले आ निकला, जहां उसके घर में ऐसी वहशत नहीं थी, ऐसा सन्नाटा नहीं था। अम्मा अपनी मर्जी से महरोज के लिए दुल्हन ब्याह कर लाई थी और महरोज ने भी उनकी पसंद के सामने सर झुका दिया था। मगर जब शादी की रात महरोज ने सानिया को देखा तो वो उससे पहली ही नजर में इश्क कर बैठा। सानिया बेहद खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती का बखूबी एहसास भी था। वो नई नवेली दुल्हनों की मानिंद नाज नखरे दिखाती तो महरोज दिलो जान से उसके नखरे उठा रहा था। उन दिनों महरोज छुट्टियों पर आया हुआ था। उसे जल्द अपनी जॉब पर वापस लौट जाना था। वो एक आर्मी ऑफिसर था, इसीलिए उसे चंद दिन की छुट्टियां मिली थी। मगर जब से सानिया उसकी जिंदगी में आई थी, महरोज आफंदी को अपनी जिंदगी बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। अम्मा भी अपने बेटे को खुश देखकर बेहद खुश थी। महरोज की रूखी फीकी सी जिंदगी में बहार आ गई थी। मगर जाने क्यों सानिया महरोज से उखड़ी उखड़ी सी रहती थी, जबकि महरोज उसके रवैये को नजरअंदाज करके उस पर अपनी भरपूर मोहब्बत निछावर कर रहा था। महरोज की छुट्टी खत्म हो गई थी, उसे अब वापस लौट जाना था। महरोज बेहद उदास था। वो सानिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर बहरहाल मजबूरी थी। वो अपनी एक माँ की नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वापस अपनी नौकरी पर आ गया। हाँ, मगर सानिया को महरोज के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। महरोज वापस चला गया और सानिया की बन आई। सानिया इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो शादी से पहले अपने क्लास फेलो को पसंद करती थी, मगर सानिया के माँ बाप उस लड़के से सानिया की शादी करने पर राजी नहीं थे। उन्हें महरोज का रिश्ता हर लिहाज से बेहतर लगा, इसीलिए उन्होंने सानिया के लाख मना करने के बावजूद महरोज के रिश्ते के लिए हामी भर ली। सानिया ने रो रो कर सारा घर सर पर उठा लिया, मगर उसके माँ बाप ने उसकी एक भी ना सुनी थी और महरोज से उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। सानिया ने अदनान से कह दिया था कि उसके घर वाले अगर उसकी जबरदस्ती शादी करवा देंगे तो वो उसके साथ घर से भाग जाएगी। मगर अदनान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी लड़की को उसके घर से भगा सकता। वो तो खुद अपने माँ बाप के खर्चे पर रह रहा था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। यही सब देखकर सानिया के माँ बाप ने अदनान से उसकी शादी करने से इनकार किया था, मगर सानिया की आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। उसे अदनान में कोई कमी और खामी दिखाई नहीं देती थी। वो अदनान के प्यार में पागल हो गई थी, यहाँ तक कि वो अदनान के साथ अपनी शादी के रोज घर से भागने के लिए भी तैयार हो गई। अदनान हिम्मत नहीं दिखा सका और सानिया रोते धोते महरोज की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मगर शादी के बाद भी वो महरोज को दिल से कबूल नहीं कर सकी, क्योंकि उसके दिल पर अदनान का नाम लिखा था। इसलिए वो इस एक माह में महरोज की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे सकी। वो मजबूरी के तहत महरोज के साथ रह रही थी। महरोज को उसकी सर्द महरी का अंदाजा हो गया था।
مگر وہ اس کے بارے میں کوئی گمان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ثانیہ سے محبت کرنے لگا تھا اور اب اس کے بغیر رہنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چند گھنٹوں بعد مہروز نے اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جانا تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کب چھٹی ملتی۔ وہ ثانیہ کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جبکہ دانستہ اسے دیکھنے سے وہ گریز کر رہی تھی۔ مہروز نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کی مخملی سے کلائی تھام لی۔ ثانیہ، اس ایک ماہ میں مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ میں اب تمہارے بغیر رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس بار میرے لیے جانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مہروز نے ثانیہ کو اپنے قریب کرتے ایک جسٹ کی سی کیفیت میں کہا۔ ثانیہ کے چہرے پر بیزاری کے کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ ثانیہ نے مہروز کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر مہروز نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ اس کی گرفت میں سختی نہیں تھی، بلکہ نرمی تھی، جو ثانیہ کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ کیوں مجھ سے اب تک جھجک رہی ہو؟ مہروز نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے سوال کیا، مگر ثانیہ اب بھی سر جھکائے خاموش تھی۔ مہروز اس کی بیزاری کو اس کی حیا اور شرم سمجھ رہا تھا۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اماں سے بلا جھجک کہہ دینا، مہروز نے محبت سے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ ثانیہ نے بیزاری سے سر ازبات میں ہلا دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مہروز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس ایک ماہ میں بھی اس کی شرم اور حیا ختم نہیں ہوئی تھی۔ مہروز اسے مزید وقت دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اب وہ 6 ماہ کے لیے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے اسے چھٹی ملتی یا نہیں، اسے پتہ نہیں تھا۔ مہروز ثانیہ کا خیال اپنے دل میں لیے واپس اپنی جاب پر چلا گیا، اور ثانیہ تو مہروز کے جانے پر اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ ثانیہ نے دوبارہ سے عدنان سے رابطہ کر لیا۔ عدنان نے رو رو کر ثانیہ سے معافی مانگی کہ وہ اس کے لیے بروقت ہمت نہیں دکھا سکا اور اسے کھو دیا۔ ثانیہ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، عدنان نے بھیگے ہوئے لہجے میں ثانیہ سے کہا۔ عدنان، اب ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری شادی ہو گئی ہے، تمہیں اسی وقت ہمت دکھانی چاہیے تھی۔ میں تو تمہارے ساتھ گھر سے بھاگنے کو بھی تیار تھی، مگر تم اپنے گھر والوں سے ڈر گئے تھے، ثانیہ نے اداس سے لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں ثانیہ، ان سب میں میری غلطی ہے، مگر پلیز تم مجھے ایک موقع دو، میں اپنی ساری غلطیاں سدھار لوں گا۔ عدنان نے مکاری سے اپنے لہجے کو اداس بنانے کی حتی الامکان کوشش کی۔ مجھے اب فون مت کرنا عدنان، میری زندگی کو مزید مشکل مت بناؤ، میں پہلے ہی اس رشتے کو قبول نہیں کر سکی۔ ثانیہ نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ عدنان لب بھینچ کر رہ گیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ جانتا تھا ثانیہ اس سے بے حد محبت کرتی ہے، کچھ وقت لگے گا مگر وہ اسے منا ہی لے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ پس و پیش کے بعد ثانیہ مان گئی تھی، اس کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی۔ ویسے بھی اب مہروز یہاں نہیں تھا، ثانیہ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا، اس لیے ثانیہ کو مکمل طور پر آزادی مل گئی۔ اماں سارا دن اپنی عبادت میں مشغول رہتی تھیں، اس لیے ثانیہ کو ان کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ثانیہ نے پہلے عدنان سے فون پر رابطہ رکھا ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ عدنان اس سے ملنے کے لیے ضد کرنے لگا۔ ثانیہ اسے کہیں باہر جا کر نہیں ملنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی بدنامی کو گلے نہیں لگانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے عدنان کو اپنے گھر پر ہی بلا لیا۔ اماں دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی، ایسے میں ثانیہ کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اس نے بے خوف ہو کر عدنان کو گھر بلا لیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ جس دن اس کا سچ سامنے آ گیا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ تو ایک بار پھر عدنان کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ اب عدنان ثانیہ سے ملنے گھر آنے لگا، اور اس بات کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں تھی۔ اس روز مہروز کا فون آیا تھا، مگر ثانیہ کے سامنے عدنان بیٹھا تھا۔
महरोज को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीठ पीछे उसके घर में कैसी नकब लगाई जा रही है। कैसी हो सानिया? मैं 2 दिन से तुम्हें फोन कर रहा हूं, मगर तुम मेरा फोन नहीं उठा रही। घर में सब ठीक है? महरोज ने नरम लहजे में सानिया से पूछा। कि सब ठीक है? सानिया ने बेजारी से महरोज को जवाब दिया। तो तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? महरोज ने उसे फिक्रमंदी से पूछा। महरोज, क्या हो गया? मैं काम में मसरूफ थी, इसीलिए आपका फोन नहीं उठा सकी। क्यों एक ही बात के बार बार पूछे जा रहे हैं? सानिया ने इंतहाई बदतमीजी से महरोज से कहा। उसने हैरानी से फोन की जानिब देखा। सानिया ने कभी उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। बेशक वो उससे बेजार लहजे में बात करती थी, मगर यूं बदतमीजी कभी नहीं की थी। सानिया, क्या हो गया? मैं तुमसे सिर्फ पूछ रहा हूं, महरोज ने एक बार फिर से नरम लहजे में कहा। मगर सानिया फोन काट चुकी थी और अदनान मुस्कुराते हुए सानिया को देख रहा था। उस रोज के बाद से सानिया ने महरोज का फोन उठाना बंद कर दिया। महरोज को उसका ये रवैया समझ नहीं आ रहा था। वो घर से इतनी दूर बैठा था तो उसका परेशान होना तो बनता था। अभी उन दोनों की नई नई शादी हुई थी, मगर सानिया का रवैया कहीं से भी लचक नहीं खा रहा था। महरोज ने अम्मा से भी इस बारे में पूछा, मगर उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया कि उन्हें सानिया के इस रवैये के बारे में कोई इल्म नहीं। वो तो हर वक्त घर पर ही रहती है, कहीं आती जाती नहीं है, यहां तक कि अपने माँ बाप के घर तक नहीं जाती। जब घर में सब ठीक था तो महरोज को सानिया के रवैये की समझ नहीं आ रही थी। उस रोज महरोज सुबह से ही सानिया को फोन कर रहा था कि आज वो घर आ रहा है और शाम तक घर पहुंच जाएगा, मगर सानिया ने उसका फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। वो अपने कमरे में अदनान के साथ मसरूफ थी। अदनान सुबह से ही आया हुआ था। सानिया अपने कमरे से निकली नहीं थी, इसलिए महरोज ने अम्मा को फोन करके बता दिया कि वो शाम तक घर पहुंच जाएगा और उन्हें यह भी कहा कि वो सानिया को बता दें। अम्मा ने सानिया को कई आवाजें दी और साथ ही उसके कमरे का दरवाज़ा भी बजाया था, मगर सानिया कमरे से बाहर नहीं आई थी और ना ही उसने किसी बात का जवाब दिया। शाम होते ही महरोज घर पहुंच गया, मगर सानिया अदनान के साथ कमरे में बंद थी, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। महरोज अपने कमरे की जानिब गया। उसने दरवाज़ा बजाया, मगर सानिया समझी कि अम्मा दरवाज़ा बजा रही हैं, इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला। महरोज को परेशानी ने घेर लिया। जब अम्मा ने उसे बताया कि वो सुबह से कई बार आकर दरवाज़ा बजा चुकी है, मगर सानिया पर कोई असर नहीं हुआ। महरोज के पास कमरे की चाबी थी। उसने अगले ही लम्हे दरवाज़ा खोल लिया, मगर सामने का मंजर देखकर वो शशदर रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसकी बीवी उसके कमरे में किसी गैर मर्द के साथ मौजूद थी। गैरत से महरोज की आंखें सुर्ख अंगारा हो गईं। अदनान अगले ही पल कमरे की खिड़की से निकलकर भाग गया। सानिया ने बेयकीनी से उसे भागता हुआ देखा और बेइख्तियार ही गहरी सांस भरी। कुछ देर बाद सानिया के घर वाले महरोज के घर पर मौजूद थे। महरोज ने उसी वक्त सानिया को तलाक दे दी। महरोज सब कुछ माफ कर सकता था, मगर बेवफाई माफ नहीं कर सकता था। उस रोज के बाद महरोज की दुनिया अंधेर हो गई। उसका रिश्तों पर से एतबार उठ गया। वो चाहकर भी दोबारा खुद को दूसरी शादी पर राजी नहीं कर सका। महरोज दोबारा से अपनी जॉब पर चला गया और इस 2 साल के अरसे में लौटकर घर नहीं आ सका था। हर पल उसे यही ख्याल डसता रहता कि उसकी बीवी ने उससे बेवफाई की थी। उसके पीठ पीछे वो किसी और शख्स से मरासिम इस्तवार किए हुए थी और उसे कानो कान खबर तक नहीं थी। आखिरकार अम्मा की लाख मिन्नत समाजत के बाद वो 2 साल बाद घर आया और अब अम्मा के सामने बैठा हुआ था। महरोज, मैं कुछ नहीं जानती, तुम अब शादी करके ही यहां से जाओगे, अम्मा ने गुस्से से महरोज की तरफ देखते कहा। महरोज ने एक ठंडी सांस भरकर अम्मा की तरफ देखा। अम्मा, मैं एक शादी कर चुका था, मगर क्या हुआ? मेरे साथ वो लड़की मेरे ही घर में किसी और शख्स के साथ मौजूद थी।
महरोज ने जब्त से मुट्ठियां भींचते हुए कहा। वो आज भी उस मंजर को भूला नहीं था जब उसने सानिया को अपने ही कमरे में किसी दूसरे शख्स के साथ देखा था। आज भी उस मंजर की हर बारीकी उसे याद थी। अम्मा ने बेबसी से अपने इकलौते और जिद्दी बेटे की तरफ देखा। जरूरी नहीं है कि अगर एक लड़की ऐसी निकल आई तो तुम्हारा शादी पर से एतबार ही उठ जाए। दुनिया में अभी लड़कियां मौजूद हैं। अम्मा ने महरोज को मनाने की एक और कोशिश की थी, मगर महरोज ने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अम्मा बेबसी से उसे देखकर रह गईं। वो बीमार रहने लगी थी। उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि वो जब इस दुनिया से जाएं तो महरोज बिल्कुल तन्हा रह जाए। महरोज, हम लोग आज गांव जा रहे हैं। वहां मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। अब मैं तुम्हारे मुंह से इनकार नहीं सुनूंगी, अम्मा ने सख्त लहजे में महरोज से कहा। तो महरोज उन्हें देखकर रह गया। उसने इनकार करने के लिए मुंह खोला, मगर उससे पहले ही अम्मा बोल पड़ी। महरोज, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं, मुझ पर और मेरे बुढ़ापे पर रहम करो। अम्मा जी की आंखों में उस पर आंसू भर आए थे और महरोज चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। वो महज पहलू बदल कर रह गया। उसी रोज अम्मा और महरोज गांव जाने के लिए रवाना हो गए। चंद घंटों बाद वो दोनों गांव में एक बड़ी सी हवेली में बैठे थे। ये अम्मा की कज़न की हवेली थी। अम्मा ने उनकी बेटी के लिए महरोज का रिश्ता लाई थी। वो लोग भी इस रिश्ते पर राजी थे। महरोज इंतहाई बेजारी के आलम में वहां बैठा था। कुछ देर बाद वो एक फोन कॉल करने के लिए उठकर बाहर आ गया। वो चलता हुआ हवेली के पिछले लॉन में पहुंच गया था। इसी असना में किसी ने उसके ऊपर पानी से भरा गुब्बारा फेंका था। महरोज बुरी तरह से बौखला गया। पानी उसके कपड़ों को गीला कर चुका था, यहां तक कि उसके फोन में भी पानी चला गया था। महरोज गुस्से से पागल हो गया। उसने सर उठाकर सामने की तरफ देखा तो एक लड़की अपने मुंह पर हाथ रखे फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तुम पागल हो गई हो? ये क्या किया? मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। महरोज ने गुस्से से बुरी तरह पेचोताप खाते कहा, जबकि सामने खड़ी लड़की उसके इस तरह से चीखने पर बुरी तरह सहम गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया, उस लड़की ने रोहान से लहजे में कहा। मैं तुम जैसी लड़की को सीधा करना बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। महरोज गुस्से से गुर्राया। महक बुरी तरह से खौफजदा हो गई। वो फौरन ही वहां से भाग गई थी और हवेली में जाकर गुम हो गई। महरोज ने एक गहरी सांस ली, फिर खुद को रिलैक्स किया और अपने फोन की तरफ देखा। फोन में ज्यादा पानी नहीं गया था, इसीलिए वो चल रहा था। महरोज एक ठंडी सांस भरता अंदर की तरफ चला गया। रात इन लोगों को यहीं रुकना था और कल महरोज का निकाह उस लड़की से होना था। मगर रात को जब अम्मा और महरोज अपने कमरे में तन्हा थे तो अम्मा ने उसे बताया कि उस लड़की ने महरोज से निकाह करने से इनकार कर दिया है। अम्मा की बात सुनकर वो गुस्से से भर गया और तैश में उस लड़की के कमरे की तरफ गया, मगर बेड पर सोती उसे शरारती लड़की को देखकर वो दंग रह गया। उसकी नजर उस मासूम लड़की के चेहरे पर अटक गई। वो काफी देर तक मुस्कुराता हुआ यकटक उस लड़की के चेहरे को देखता रहा। फिर उसे अपनी हालत का एहसास हुआ। वो उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो अब इस लड़की से निकाह करने पर राजी था। अगली सुबह भी आ गई और उस लड़की के इनकार के बावजूद उसके घर वालों ने उसका निकाह महरोज से कर दिया और उसे महरोज के साथ रुखसत कर दिया। महक रोते धोते महरोज के साथ रुखसत होकर उसके घर आ गई, मगर उसके दिल में महरोज की दहशत बैठ गई थी। महरोज ने पहली ही मुलाकात में उसके दिल में अपना डर बिठा दिया था। महक सहमी हुई सी महरोज के कमरे में मौजूद थी, मगर महरोज अब तक कमरे में नहीं आया था। अम्मा उसे महरोज के कमरे में छोड़कर चली गई थी। महक अपने दिल में हजारों खदशे और वसवसे लिए महरोज के कमरे में मौजूद थी। महक ने अपना घूंघट उलटकर
महरोज के कमरे को देखा। कमरा सादगी और नफासत से सजा हुआ था। इसी असना में महरोज कमरे में आया। महक फौरन ही सीधी होकर बैठ गई। महरोज ने कमरे में आकर एक गहरी सांस भरी और बेड पर बैठी इस छोटी और कमसिन लड़की की तरफ देखा, जो उसके आने से पहले बहुत इत्मीनान से पूरे कमरे का जायजा ले रही थी और उसके आते ही घूंघट डालकर बैठ गई। महरोज बेड के पास गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उलट दिया। महक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर महरोज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नाराजगी छाई हुई थी, मगर वो मुंह से कुछ बोली नहीं थी। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अम्मा के मजबूर करने पर की है, वरना मेरा तुमसे शादी करने का इरादा नहीं था। इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। महरोज ने गहरी नजरों से महक की तरफ देखते सर्द लहजे में कहा। अब की बार महक की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो खुद पर इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वो अपनी जगह से उठकर महरोज के सामने आकर खड़ी हो गई। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ये सलूक करता है? महक ने अपनी कमर पर हाथ बांधते गुस्से से कहा। महरोज ने अब्रू उचकाकर उसे देखा। मैंने कल भी आपकी बदतमीजी बर्दाश्त की थी। गलती इंसान से ही होती है और आपके ऊपर सिर्फ पानी ही तो गिरा था। ऐसी भी कौन सी कयामत आ गई थी जो आप इस तरह से चीखना शुरू हो गए? महक भी लड़ने के मूड में थी। कल जो उसके दिल पर महरोज की दहशत बैठी थी वो आज खत्म हो गई थी। महक अपने रूप में लौट आई थी, जबकि महरोज हैरानी से उसके बदलते मूड को देख रहा था। और अगर आपने मुझसे शादी अपनी अम्मा के मजबूर करने पर की है, तो मैंने भी आपसे शादी अपने बाबा के मजबूर करने पर की है। इसलिए मेरी तरफ से भी किसी किस्म की खुशफहमी मत रखिएगा। महक ने भी उसी वक्त हिसाब बराबर किया। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई उसके सामने खड़े होकर उसकी जात की नफी कर रहा हो। महरोज जब्त से उसे देखकर रह गया। बात सुनो, मेरे सामने ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी कैंची ऐसी जबान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। महरोज ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया, मगर वो महक ही क्या जो किसी से डर जाए। अगर आप मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे तो मेरी भी कैंची जैसी जबान नहीं चलेगी। महक ने भी बदले में उंगली उठाकर उसे वार्न किया, जबकि महक के इस रवैये पर महरोज आफंदी गुस्से से बल खाकर रह गया। वो हैरत से अपने सामने खड़ी इस छोटी सी लड़की को देख रहा था, जो बिना किसी डर और खौफ के उसकी आंखों में झांक रही थी। महरोज ने तो उसके मासूम चेहरे को देखकर इस लड़की से शादी की हामी भरी थी कि वो इससे डर कर रहेगी और इसकी जिंदगी में मदाखलत नहीं करेगी। मगर सामने खड़ी लड़की तो पूरी तरह से मुकाबलेबाजी पर उतर आई थी। महरोज ने बहुत जब्त से सांस भरा। वो समझ गया था कि इस लड़की से बहस करना बिल्कुल फजूल है। वो मजीद उसके साथ दिमाग नहीं लगा सकता। इसलिए बिना कुछ कहे अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया, जबकि महक आईने के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी थी। कुछ देर बाद महरोज वॉशरूम से बाहर आया। आपने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी? महक ने एक बार फिर से महरोज के सामने खड़े होते कहा। उसकी बात सुनकर महरोज के जब्त की इंतहा हो गई, मगर उसने खुद को बमुश्किल काबू में रखा। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मुंह दिखाई भी नहीं ली। महरोज ने इत्मीनान से बेड पर फैल कर लेटते हुए कहा। अम्मा ने कमरे में आने से पहले ही महरोज को बता दिया था कि कमरे में साइड टेबल में उसकी दुल्हन की मुंह दिखाई रखी हुई है, मगर महरोज ने जान पूछ कर उसे नहीं दी। वो जाने क्यों उसे सताना चाहता था। महक ने घूर कर महरोज को देखा और फिर पैर पटकती वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो महरोज सो चुका था। महक ने बेड पर देखा तो महरोज ने उसके सोने के लिए बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी थी। वो गुस्से से पेचोताप खाकर रह गई, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। महरोज गहरी नींद सो चुका था। महक खामोशी से अपना तकिया उठाकर सोफे पर चली आई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
काफी देर तक वो करवटें बदलती रही। आखिरकार नींद उस पर मेहरबान हो ही गई। महरोज इस बार 2 माह की छुट्टियों पर आया था, मगर वो महक से मुकम्मल तौर पर लापरवाही बरतते हुए था। महक महरोज की पहली शादी के बारे में बाखबर थी, मगर ये बात किसी को नहीं पता थी कि महरोज ने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी। महरोज ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, इसलिए महक भी इस सारे मामले से बेखबर थी। मगर महरोज का सर्द और खुश्क रवैया देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि महरोज आज भी अपनी पहली बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मगर महक भी फैसला कर चुकी थी कि वो महरोज के दिल में अपनी जगह बना लेगी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी वो अपने गीले बाल खुश्क कर रही थी जब महरोज कमरे में आया। वो आते ही बेड पर बैठ गया। वो सारे दिन का थका हारा था, कुछ देर पहले ही बाहर से आया था और काफी देर से अम्मा के पास बैठा हुआ था। अम्मा सोने चली गईं तो उसे भी नाचार उठकर कमरे में आना पड़ा। उसने महक को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया था। महरोज की शादी को काफी वक्त गुजर गया था, मगर अब तक उन दोनों के दरमियान सर्द महरी कायम थी। महक ने कई बार इस सर्द महरी को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर महरोज जैसे पत्थर का बुत बन चुका था। उस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। महरोज तकिया सीधा करके बेड पर आंखें बंद करके लेट गया। उसे अपने बराबर में किसी के बैठने का एहसास हुआ। महरोज ने अपनी आंखों पर से हाथ उठाकर देखा तो महक अपना तकिया बेड पर रखकर लेटने की तैयारी कर रही थी। महरोज के माथे पर बल पड़ गए। तुम यहां क्यों लेट रही हो? महरोज ने खुश्क लहजे में महक से पूछा। महक ने इत्मीनान से महरोज की तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरी। मैं शादी के बाद से सोफे पर सो रही हूं, जबकि उसूलन मुझे बेड पर सोना चाहिए, मगर आपने एक बार भी मुझे झूठे मुंह ये तक नहीं कहा कि आकर बेड पर सो जाओ। महक ना चाहते हुए भी महरोज से शिकवा कर बैठी थी। जब इतने दिनों से सोफे पर सो रही थी तो अब भी सोफे पर ही सो जाओ। महरोज ने भी सर्द महरी की इंतहा कर दी। मैं आपकी बीवी हूं, आपको मुझ पर जरा रहम नहीं आता? मेरे साथ ये सलूक करते? महक की आवाज भीग सी गई थी। महरोज ने गौर से महक के चेहरे की तरफ देखा, कोफ से अपनी आंखें मींची। देखो, मैं इस वक्त किसी भी ड्रामे के मूड में नहीं हूं। तुमने जहां सोना है वहां सो जाओ। महरोज ने यह बात कहकर अपनी जान छुड़ाई थी और करवट लेकर लेट गया। महक कुछ देर तक खामोश सी महरोज की पीठ की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो जैसे एक खामोश सफर करते करते थक सी गई थी। आज उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था और वो अपने घुटनों में सर छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। महरोज ने चौंक कर महक की तरफ देखा। उसे महक का इस तरह से रोना समझ में नहीं आया था। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। क्या हो गया? अब इस तरह से क्यों रो रही हो? महरोज ने अपने लहजे की बेरजारी को हत्तौल इम्कान छुपाने की कोशिश की थी, मगर महक रोती रही थी। महरोज खामोशी से उसे रोता हुआ देखता रहा। वो अपनी जगह से उठकर महक के सामने आकर बैठ गया। क्या हुआ? इस तरह से क्यों रो रही हो? इस बार महरोज ने नरम लहजे में पूछा। महक ने रोते हुए आंखें उठाकर महरोज की जानिब देखा। उसकी सुनहरी आंखें सुर्ख हो रही थी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? महक ने भीगे हुए लहजे में महरोज से पूछा। महरोज उसका सवाल सुनकर अपने लब भेंच गया। मैं नहीं जानती कि आपकी पहली शादी क्यों टूटी, मगर आप इस बात की सजा मुझे देते हैं। इस सब में मेरा क्या कसूर था? महक ने रोते हुए महरोज से कहा। महरोज बुत बना महक की तरफ देख रहा था। उसने महक के साथ ज्यादती करते ये कभी नहीं सोचा था कि वो उसके साथ कितना गलत कर रहा है। उसके इस अमल से इस छोटी सी लड़की के दिल पर क्या गुजरेगी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की आपके दिल में जगह बनाने की, मगर आप तो पत्थर बने हुए हैं, किसी भी बात का कोई असर नहीं होता।
महक ये कहते फूट फूट कर रोने लगी। महरोज ने महक का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। महक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर इन सब पर मेरा कोई बस नहीं था। महरोज इस लम्हे शर्मिंदा सा था। वो जाने अनजाने में किसी मासूम को तकलीफ दे बैठा था। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं था। महरोज ने नरमी से महक को खुद से लगाते इकरार किया। उसे इस लम्हे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। महक चाहे जितनी भी लापरवाह सही, मगर महरोज की लापरवाही उसका कलेजा चीर देती थी। वो महरोज के सीने से लगे मजीद शिद्दत से रो दी। महरोज ने उस रात उसे अपनी सारी ज्यादतियों का हिसाब दिया। उसने महक की जिंदगी को हसीन बनाने के वादे किए थे और महक उसके हर एक वादे पर ईमान ले आई थी। उस रात महक और महरोज के रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई। अगली सुबह महक के लिए बहुत रोशन थी। उसके चेहरे पर एक अलग रोशनी छाई हुई थी। वो बात बेबात मुस्कुरा रही थी। अम्मा ने भी कन अखियों से उन दोनों को देखा और चुपके से नजर उतारी। उन्हें यकीन हो गया था कि अब उनके बेटे की जिंदगी में खुशियां दस्तक दे रही थी, मगर उस पर वो नहीं जानती थी कि एक तूफान है जो उनके सर पर खड़ा है। महक काफी दिनों से देख रही थी कि महरोज कुछ परेशान है। उसने महरोज से काफी बार उसकी परेशानी की वजह पूछी, मगर वो हर बार टाल जाता। उसने महक को कुछ नहीं बताया था, मगर अक्सर महरोज मोबाइल पर किसी नंबर से उसे कॉल आने लगी थी। उस फोन के आते ही महरोज या तो अपना मोबाइल बंद करके रख देता या फिर साइलेंट पर लगा दिया करता। महक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसकी कॉल है जिसके आते ही महरोज बेचैन हो जाता है। उसने कई बार उससे पूछा, मगर महरोज ने हर बार उसे नरमी से टाल दिया। महक अपने कमरे में सो रही थी जब उसे दरवाजे पर खटका महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो महरोज कमरे में मौजूद नहीं था। वो आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गई। इतनी रात को महरोज कहाँ जा सकता था? महक कमरे से बाहर आई तो उसे लॉन में से किसी की बातें करने की आवाज आई। वो आवाज की सिमत बढ़ी थी। महरोज की उसकी जानिब पीठ थी, इसीलिए वो उसे आता हुआ नहीं देख सका। महरोज, प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दें। महरोज के सामने रात के इस पहर सानिया हाथ जोड़े खड़ी थी। महक को लगा कि वो अब कभी सांस नहीं ले सकेगी। तुम क्यों आई हो यहां पर? चली जाओ, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। महरोज ने खुश्क लहजे में सानिया से कहा। महरोज, आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे और ना ही आप मुझसे बात करना चाहते हैं। आप प्लीज मुझे एक मौका दे दें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। सानिया ने महरोज का बाजू थामते हुए कहा। सानिया, तुम्हारे लिए तो बेहतर है कि यहां से चली जाओ। मैं दूसरी शादी कर चुका हूं। मेरे कमरे में मेरी बीवी मौजूद है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूं। महरोज ने उसे अपना बाजू छुड़ाते सख्ती से कहा। महरोज, मेरे साथ ये जुल्म मत करें। मेरे पास अब रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। सानिया ने दुहाई दी थी, मगर महरोज ने अपने कान बंद कर लिए और सानिया को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया। वो पीछे मुड़ा तो महक दुम साधे खड़ी थी, यूं जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। महरोज को समझ नहीं आया कि वो उसे कैसे वजाहत दे, मगर महक उन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी, इसलिए उसे अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं थी। महक खामोशी से अपने कमरे में लौट गई, जबकि महरोज अपना सर थामे वहीं बैठा रह गया। सानिया से उसने सच्ची मोहब्बत की थी और उसने इसकी पीठ में खंजर घोंपा था, और आज वो एक बार फिर से उसके सामने आन खड़ी हुई थी। महरोज से तलाक के बाद सानिया ने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर अदनान से शादी कर ली, मगर अदनान कोई काम नहीं करता था। उसे आराम करने की आदत थी। जब भी शादी के चंद दिनों बाद उन दोनों में झगड़े शुरू होने लगे।
کیونکہ ثانیہ کو اتنی تنگ دستی میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ مہروز نے بھی ثانیہ کو پیسے دے کر کبھی اسے حساب نہیں مانگا تھا، اور اب تو ثانیہ کے ہاتھ میں بالکل پیسے نہیں تھے۔ عدنان کے گھر والوں نے بھی سعدیہ سے شادی کرنے کی وجہ سے اس سے اپنا ہر رشتہ توڑ لیا تھا، اور عدنان کو کام کرنے کی پہلے ہی عادت نہیں تھی، اس لیے شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان روز روز لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ انہی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر ثانیہ نے نوکری کر لی۔ یوں ثانیہ گھر کا خرچ چلانے لگی، جبکہ عدنان سارا دن گھر میں پڑا سوتا رہتا۔ اسے ثانیہ کی پریشانی کا کوئی احساس نہیں تھا، اور جب ثانیہ کو تنخواہ ملتی تو وہ اس کی آدھی سے زیادہ تنخواہ چھین لیا کرتا۔ ثانیہ روتی رہ جاتی، مگر عدنان پر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اب تو عدنان اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ شادی سے پہلے وہ جو ہر وقت ثانیہ سے پیار محبت کے دعوے کرتا رہتا تھا، شادی کے بعد وہ ایک بہت ہی مختلف انسان بن چکا تھا۔ اس عدنان کو تو ثانیہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ جلد ہی ثانیہ کو احساس ہو گیا کہ اس کا فیصلہ بہت غلط تھا۔ اس نے ہیرے کو چھوڑ کر پتھر کو چن لیا تھا، مگر جب تک اسے احساس ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ مہروز اسے طلاق دے چکا تھا، اور اب وہ عدنان کی بیوی تھی۔ مہروز سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ثانیہ اس پچھتاوے میں اپنے دن رات گزارنے لگی، اور ایک روز عدنان نے غصے میں ثانیہ کو طلاق دے دی۔ ثانیہ ایک بار پھر طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر سجائے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، مگر ثانیہ کے بھائی بھابھی نے اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ اب ثانیہ کے پاس اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ یتیم خانے چلی آئی، مگر اب وہاں بھی زمین اس پر تنگ ہونے لگی تھی۔ اب ثانیہ کے پاس مہروز ہی آخری سہارے کے طور پر بچا تھا، مگر جب وہ یہاں آئی تو اسے پتا چلا کہ مہروز نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ثانیہ کی زندگی اندھیر ہو گئی۔ وہ مہروز کے گھر سے روتی ہوئی باہر نکلی تھی، اور آگے جا کر کسی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اسے زوردار چوٹ لگی تھی، اور اس گاڑی والے نے ہی اٹھا کر اسے اسپتال پہنچایا تھا۔ ثانیہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اسے بہت سی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ بے ہوش پڑی تھی جب اس کے موبائل سے مہروز کا نمبر ڈائل کیا گیا، کیونکہ اس نے آخری بار کالز مہروز کو ہی کی تھی۔ مہروز لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اس میں مہک کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس کے سوالوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی اثنا میں اس کا فون بجا۔ اس نے بے دلی سے اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے جو خبر اسے ملی، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ سرعت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر پیچھے پلٹا تو اس کے پیچھے مہک کھڑی تھی۔ اس وقت اس کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے وہ مہک کو نظر انداز کر کے گھر سے چلا گیا۔ مہک ہاری ہوئی سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ مہروز اسپتال پہنچا تو ثانیہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بالکل نا امیدی ظاہر کر دی تھی۔ مہروز نے ثانیہ کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ بھی آ گئے تھے۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، وہ مہروز کو بلا رہی ہیں۔ نرس نے سب کو بتایا۔ مہروز نے گہری سانس بھری اور ثانیہ کے پاس گیا۔ مہروز کو دیکھ کر ثانیہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مہروز کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تھا۔ مہروز، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ ثانیہ نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ مہروز بالکل خاموش سا کھڑا تھا، جبکہ ثانیہ مشکل سے سانس لے پا رہی تھی۔ ثانیہ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر اب میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تم خود اپنی جگہ چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے تو تم سے سچی محبت کی تھی، مگر تم نے میری محبت کی قدر نہیں کی۔ اب ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، مہروز نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ ثانیہ کے دل سے ہر قسم کی خوش فہمی اور غلط فہمی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ثانیہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی۔
महरोज वहां से घर आ गया, मगर घर आते उसे सुबह हो गई थी। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो अपनी जगह पर बुरी तरह से चौंक गया। महक अब तक लाउंज में ही बैठी थी। महक ने कदमों की आहट पर सर उठाकर उसकी तरफ देखा। यूं लगता था जैसे वो रात भर रोती रही हो। महरोज थका हारा सा उसके बराबर में बैठ गया और उसके कंधों के गिर्द अपने बाजू फैलाए। रो रोकर अपनी आंखों का क्या हशर कर लिया है? महरोज ने उसकी पलकों को छूते नरमी से कहा, मगर महक कुछ भी ना बोली। महक, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसने उसका हाथ थामकर यकीन दिलाया। महक ने एक गहरी सांस भरी। आप क्यों गए थे? इस तरह से मुझे देखे बगैर? महक ने गुलूगीर लहजे में पूछा। कुछ बातों की वजाहत करना बहुत जरूरी था, महरोज ने थके हुए लहजे में कहा। महक ने शिकवा कुना नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं डर गई थी, महक ने खदशे का इजहार किया था। बेवफाई माफ नहीं होती, महरोज ने उसके चेहरे पर आई लटों को कान के पीछे नरमी से अड़ाते हुए कहा और नरमी से उसे अपने सीने से लगा लिया। एक आंसू महरोज के गालों पर लुढ़क आया था, जिसे उसने कमाल महारत से छुपा लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।